See, 11th question of 11.1. A car has two wipers. Wipers ऐसे घूमेंगे. जब ये वाइपर है ऐसे जाएगा this and this. तो क्या बनेगा सेक्टर? From here to here. This to this. ऐसे two wipers. These are the two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping to an angle of 115. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Total area cleaned at each sweep of the blades. If these two wipers are moving, area of sector is what? Pi r square theta over 360. And how many wipers are there? 2. So it would be 2 pi r square theta over 360. हाँ एक स्टूल पड़ा है, किधर दे दो उसको, अंदर से ले जाओ तुम. 2 pi r square theta over 360. Pi is 22 by 7. The radius of the blade is 25. Theta is 115. 5 5s are 5 7 2 36. 2 11s are 2 18. 11 into 125 into 115 over 7 into 18. Just 126. 125 into 11 is 1375. Then again 115. 5731. 5731. 125 into 11 is 1375. And then into 115 is 5, 2, 9, 16, 21, 8, 11, 18, 1, 5, 8, 1, 2, 5. ठीक है? Am I clear? So this is the answer of 11th question of 11.1. Correct. Because it is having two wipers, so it will be 2 into area of sector. Area of sector is what? Pi r square theta over 360 and twice इसलिए क्योंकि two wipers. इसको fraction नहीं रहने. Am I clear? Next is to warn ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. Red colored light. यहाँ आगे red colored light. Sector में spread हो रही है. Angle 80 degree at a distance of 16.5 किलोमीटर. ठीक है जी? ऐसे लाइट निकल रही है, इस तरह से जा रही है, और वो कितनी दूर तक, कितने डिस्टेंस तक लाइट स्प्रेड हो रही है, दैट इज 16.5 किलोमीटर्स. एंड व्हाट इज द एंगल मेड? 80 डिग्री. सो दिस इज द सेक्टर. ये हो गया रेडियस. ठीक है जी. फाइंड द एरिया ऑफ द सी. पाई इज 3.14. एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन. एरिया of the sea over which the ships are won. किस एरिया तक शिप्स को वॉन किया गया? जहां तक रेड कलर लाइट निकल रही है, और रेड कलर लाइट कितने डिस्टेंस तक निकल रही है? 16.5 किलोमीटर तक. तो 16.5 किलोमीटर हो गया रेडियस.
और कितना एंगल है 80 डिग्री. So that is area of the sea over which the ships are warned is area of sector. What is the formula of area of sector? By वहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 वाइपर्स थे. यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. 2 से नॉर्मली एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360. पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला? 3.1. How much is the radius? 16.5. 16.5. Theta is 80 degree over 360 degree. Point. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct? 0 cancels with 0. 4 2s are 4 9s. 2 1s are 2 5s are 2 7s are 2 5s are 5 3s are 15 5 3s are 5 7s 3 11s are 3 3s 3 5s are 3 5s. Right? 5 11s are 5 200. 2 1s are 200. 157 into 11 into 11 into 1 over 100. 157 11 11 100. 121. 157 314. Yes. So 7 9 9 8 over 100 means 189.9. 100 को decimal बना दी 189.97 and this was in kilometer, so this would be kilometer square. सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रेडियस किलोमीटर में था, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा किलोमीटर स्क्वायर. ये हर्षाना 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ था. 11th को कल टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स. राउंड टेबल कवर 6 डिजाइन्स कैसे बन रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? हेक्सागन. हेक्सागन 1 2 3 4 5 and 6. Hexagon. If the radius of the cover is 28 centimeter, a round table cover has 6 equal designs. Is 4 designs होते हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 equal designs. Radius of the cover is 28 centimeter. Radius of the cover is 28 centimeter. Okay. Radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use root 3 as 1.7. ठीक है जी. अब जो ये डिजाइन बन रहे हैं ये 6 के 6 इक्वल, ये हेक्सागन है सारे के सारे. अब सिर्फ आप इफ आई टॉक अबाउट दिस डिजाइन, व्हाट शेप इज दिस? सेगमेंट. व्हाट शेप इज दिस? ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं? 6 डिजाइन पूछे उन्होंने. पूरे हेक्सागन का एरिया तो पूछा नहीं. दे आर आस्किंग यू द 6 ऑन द राउंड कलर टेबल. तो 6 डिजाइन्स का एरिया क्या हुआ? एरिया ऑफ 6 designs means area of 6 segments. Area of 6 segments. Area of 6 designs means area of 6 segments. What is the area of segment? 6 segments का एरिया क्या होगा? 6 into area of sector minus area of triangle. What is the 6 आगे लिखिएगा. What is the area of sector? क्या होगा area of sector? 6 into pi r square theta over 360.
and area of triangle half r square sin लगा सकते हैं क्योंकि एंगल कितना है, ये कितना है टोटल, व्हाट इज द डिग्री 360, so what is theta 360 over 60 sides कितना हो गया 60, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना हो गया 60 राइट। अब आप इसको हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिखे, नहीं तो क्या लिखिए हाफ ए बी इंटू ओडी, हाफ ए बी इंटू ओडी। किसी भी स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ अभी तक आपके हुआ, कौन सा ये लगा रहे हैं आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर रहे हैं, किसी और स्कूल में हुआ क्या यूज कर रहे हैं, ये पहुंच गए यहाँ पे, ये करवा रहे हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, दे आर यूजिंग डिटेल। फिर वही मैं कह रही थी ना, क्योंकि स्कूल ये ऑब्जेक्टिव में ले रहे हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या होगा हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाफ ए बी, यही तो पूछ रही हूँ, मैंने कल भी यही बात कही थी कि ये ऑब्जेक्टिव में ही लगाओ, सब्जेक्टिव में मत लगाओ। 6 टाइम्स पाई की वैल्यू नहीं दी हुई आपको 13 में, यस √3 की दी हुई है, तो पाई की वैल्यू आपकी अपनी चॉइस है। अब अगर मेंशन नहीं है तो क्या होगी 22/7, व्हाट इज द रेडियस 28 into 28, theta is 60 over 360, half base into altitude। अब ये 60 है तो ये एंगल कितना हो गया 30, रेडियस कितना है 28, sin 30, परपेंडिकुलर BD over hypotenuse OD, cos 30, base OD and hypotenuse OD, sin 30 is what half BD over 28, cos 30 is √3/2, OD over OD, it goes here, half into 28 is equal to BD, √3/2 into 28 is equal to OD, 14, BD is 14, OD is 14√3, correct? So AB, how much would be AB? AB would be twice of BD. By what reason would you write here to make twice? A line from the center perpendicular to the chord bisects the chord. AB is 28, OD is 14√3. Now आपका सर्कल्स का टेस्ट है, I hope you remember. 2, 14, 66, 7, 4, 2, 11, 2, 3, 6 into 28 into 4 into this, 11 into 4, 44, 28, 2, 1, 1, 2, 8, right? 1, 1, 2 into 11, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2 over 3 minus 14, 14 is 196 and √3 is what 1.7, वैल्यू सबकी दी हुई आपको, √3 भी दिया हुआ, अभी तो रेट है, √3 की वैल्यू क्या है 1.7, 6 into 3 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 30, 10 टाइम्स 12320 माइनस 196 into 70, this into 3, 9996, 6 into 30 is what 5, 996, 12320 996, 10 minus 6 is 4, 11 minus 9 is 2, 12 minus 9 is 3, 11 minus 9 is this, over 5. This is the area and rate is what 0.35, 35 paisa. Cost of making 6 designs, cost of making 6 designs is area into rate, area into rate. What is the area 2324 over 5 and what is the rate 35 paisa, 35 over 100, 5 7s, 7 4s are 20, 16, 22, 100 means, so what is the cost 162 rupees and 68 paisa.
सो इस सम में आपने नोटिस किया होगा फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम सारी क्या है, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस टू बी डन, लोएस्ट टर्म लाना। अब ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली नोट कर लेंगे, खुद करके ही देखेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं। यू शुड नो हाउ टू डू दीज कैलकुलेशंस ओनली। केयरफुली इनको लोएस्ट टर्म में लाइए, डेसिमल लगाइए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 14, which says area of sector of angle P in degrees with radius r. What is area of sector? Pi r square theta over 360. आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी एरिया ऑफ सेक्टर लिखने के लिए कि सेंट्रल एंगल लिखिए थीटा ओवर 360 और एरिया पूछ लें तो पाई आर स्क्वायर ऐसे। अब आपका रेडियस आर नहीं है, आपका रेडियस है कैपिटल और आपका थीटा नहीं है, पी है। पी ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई भी नहीं है ओवर 360, एक है सी पार्ट पी ओवर 360, उसके साथ लिखा हुआ है 2 पाई आर, आपका क्या है पाई आर स्क्वायर। तो उनकी जो ऑप्शन नंबर डी है वो देखिए क्या है, पी ओवर 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 और 720 कैंसिल होकर कितना बनता है, 360 बनता है। तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको, आप 360 देखोगे, आप 360 मैच करके सी ऑप्शन से, इसके साथ क्या 2 पाई आर। यहाँ 2 पाई आर कब लगता है, जब क्या पूछा जाए लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? सो विच सूट्स हियर, 2 और 720 करके क्या आ जाएगा 360। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, दैट्स इट।